Hello my dear students, how are you all? This is Surya Kaushik and today we are going to start our next topic in our chapter, that is cell biology. We are doing cell, the basic unit of life, and today we will do some concepts. I have given you introduction of this chapter in our last video. I have told you what is eukaryotic and prokaryotic cell and what are the, you can say, different shapes of prokaryotic cell in kingdom Monera. We have done that. So we have done the basic idea of cell biology. Today I am going to start different, you can say, structures along with their functions in a cell. Okay, so let me remind a diagram of cell. Suppose student, the outer covering of the, I am taking animal cell. एनिमल सेल की बात कर रहे हैं. सो आउटर कवरिंग इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This is also called cell membrane. All right. If we talk about inside, there is no cell wall present in animal cell. Inside the center of cell, there is a nucleus that is covered by double membranous structure. That is called nuclear membrane. This is called nuclear membrane. This is nucleus. That is also called director of cell. Alright. Inside the nucleus there is nucleoplasm. Like inside the cell, the fluid present, that is called cytoplasm. And the double membranous structure that surround the nuclear membrane, this is called, that surround the nucleus, this is called nuclear membrane. These are nuclear pore. Alright students, and this is DNA, or you can say chromatin material is present inside. This is chromatin. What is chromatin? DNA plus proteins. This is called chromatin. Chromo means that can take color. We can color the chromatin as well. Alright. Then whatever the parts present along with nucleus, they are called cell organelles. सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स मिलते हैं स्टूडेंट, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. पहली सेल ऑर्गेनेलीज हमने देखी न्यूक्लियस के अलावा अगर हम बात करें राइबोसोम्स, एक स्मॉलर सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट. इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, राइबोसोम्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. ऑलराइट. तो दोनों तरह की होंगी एनिमल सेल के अंदर, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है 70S एंड 80S. ठीक है, हम बात करेंगे वन बाय वन 70S क्या है, 80S क्या है, जब हम राइबोसोम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, देयर इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. आउटर वन इज स्मूथ एंड इनर वन इज हाईली फोल्डेड. दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी बनाता है स्टूडेंट्स, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. This is outer membrane. This is inner membrane. Inner membrane is also called cristae. Important student, this is also called cristae, and that is also having F0F1 particle, that is called oxysomes. We will discuss when we will discuss the structure of mitochondria. The fluid present inside, that is called mitochondrial matrix, and that also contain many respiratory enzymes जो respiration में help करते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है जब हमारा फूड ऑक्सीडाइज होगा तभी एनर्जी रिलीज होगी. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, जो एटीपी बनाता है, एटीपी बनाने में हेल्प करता है. वो कब करता है, जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तभी उससे एटीपी रिलीज होती है. नाउ और ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें, राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली सबसे छोटी ऑर्गेनेली है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन. यूनिट मतलब सिंगल मेम्ब्रेन. लाइसोसोम भी इसको बोलते हैं स्टूडेंट, एंड इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. सुसाइडल बैग्स, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके, करेंगे जब इसको डिटेल में करेंगे. इट इज अ यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन है, और अंदर इसके हाइड्रोलिटिक
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टूडेंट, it helps to remove, or you can say, the waste material whatever present in the cell debris etc. So this is contain acidic hydrolytic enzyme. All right, different type, that like lipases, like nucleases. All right, so different types of enzymes are present inside the lysosome, because it have to destroy, it have to degrade different type of you can say waste material or cell debris or worn out cell from the सेल। एक सफाई का काम करता है ये, अंदर कुछ भी अंदर वेस्ट है, कोई सेल वॉर्न आउट है, टूटी हुई है, बेकार है, तो उसको ये क्लीन करता है। तो दिस इज लाइसोसोम। इसके अलावा कुछ वैक्यूल्स, यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली दैट हैव गैस एंड दैट मे हैव फूड, तो इनको गैस वैक्यूल्स कहते हैं। ये यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स है जैसे अमीबा, उनके अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। फूड वैक्यूल भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन, तो उनके अंदर काफ़ी, पर इनका साइज थोड़ा छोटा होता है। प्लांट के अंदर अगर हम बात करें वैक्यूल्स का साइज बड़ा है, और एक बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनेली है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपको बताती हूँ। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क के जैसे, देखिए एक नेटवर्क के जैसी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज एंडोप्लाज्म। अगर इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी कि राइबोसोम्स अगर सरफेस के ऊपर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी कई बार राइबोसोम्स मिलते हैं स्टूडेंट, तो अगर ये राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन अलग अलग है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, लिपिड बनाने में हेल्प करते हैं। वन बाय वन इस चैप्टर में हमने सभी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करना है अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर बात करें इन्हीं ये ट्यूब्यूल से स्टूडेंट्स, ये सिस्टर्ने है, ऐसी ही एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, लेकिन उसमें बीच में ये कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नहीं होंगे। ठीक है, और कैमियो गोल्जी जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनको गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। बीच में जो स्पेस है यहाँ कोई और ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं हो सकती, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बट दे आर नॉट कनेक्टेड, सो दिस पार्ट आर कॉल्ड सिस्टर्ने, दिस आर बिसाइकल्स। अगर इसके अंदर बात करें तो ये सिस्टर्ने है, और बीच में जो कनेक्ट कर रहे हैं ये ट्यूब्यूल्स। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स कि दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव राइज टू गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो ये है गोल्जी अपरेटस। काम इसका रहता है जो प्रोटीन्स, राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन बनाए, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, तो उनको टैग करके, पैक करके और ट्रांसफर करना। सेल में कहाँ जरूरत है, बॉडी में कहाँ जरूरत है, तो वो सारा काम पैक करके